Hello students, in the last video I discussed Bohr's atomic model with the postulates of Bohr's theory. But there are some limitations in the Bohr's atomic model. We need some other model. ठीक है, that we will discuss later. Now limitations क्या थी? Limitations कहाँ से आई? In the first video of atomic structure, I discussed atomic spectrum of hydrogen, and in the atomic spectrum of hydrogen, we get number of lines, number of spectral lines. What are those? Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, and Pfund series. Okay, when these spectral lines are passed through electrical field and magnetic field, these lines split into number of lines. And when these lines are passed through magnetic field, then this effect is called as Zeeman effect. And when these lines are passed through electrical field, then this is called as Stark effect. So when spectral lines are passed through magnetic field or electrical field, lines split into number of lines. So Bohr's model can't answer these observations. Okay. Similarly, the other concept is de Broglie wavelength. Now, according to de Broglie, मैटर आल्सो हैज अ वेव करेक्टर. ठीक है, फिर लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ ड्यूल करेक्टर. ठीक है, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और उनके अंदर पार्टिकल होते हैं फोटोन, तो जिसको फोटोन सनलाइट के उसमें कहते हैं, और अगर रेडिएशंस होते हैं तो उसके लिए हम उसके वर्ड यूज करते हैं क्वांटा. तो डी ब्रोगली ने बोला कि जितने भी मैटर है, ठीक है, कोई स्टोन है या कोई बॉल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये जो तो माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो पार्टिकल्स एज वेल एज मैक्रो पार्टिकल, दे जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. ठीक है, तो एंड दीज जो ये ट्रेवल करते हैं वेव फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स. तो ये वाला जो नाम है ये डी ब्रोगली ने दिया था, कॉल्ड एज मैटर वेव्स. तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो इसमें फोटोन को पार्टिकल माना गया था, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या थी? E इज इक्वल टू एच म्यू. और जो मैटर वेव्स होती हैं, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई छोटी सी बॉल या स्टोन जो भी, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन एंड दीज टू आर इक्वल. एनर्जी है, दोनों इक्वल हैं, एंड म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा एम सी स्क्वायर, एक कट जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी. तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट लेते हैं हम. ठीक है, इफ वी रिप्लेस दिस वेलोसिटी बाय द वेलोसिटी ऑफ मैटर, बाय द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, then it becomes h over mv. So this is de Broglie wavelength, which is equal to lambda is equal to h over mv, and this wave is called as de Broglie wave or matter wave. Next we will do the derivation or the relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. Relation between de Broglie wavelength and kinetic energy. ठीक है, this is de Broglie wavelength, de Broglie wavelength and kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. M is the mass of the particle and v is the velocity. V square is equal to 2 into kinetic energy divided by m. V is equal to square root of this. Now wavelength is equal to h over mv. Here, put the value of v here. It will become h m 2 ke and m or lambda is equal to h square root of 2 to kinetic energy into m. So this is the derivation. Clear? So this derivation is used in the numericals, इसलिए मैंने आपको बताई है. Now the next concept is Heisenberg's uncertainty principle. अब ये principle क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट को भी जो बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स हैं, दोज पोस्टुलेट्स कांट एक्सप्लेन. बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.
अब इसका क्या है, एक छोटा सा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी के फॉर्म में इसको मैं बताऊंगी. यू विल बी नोइंग मड पिक्चर. मड पिक्चर, ठीक है. तो वाटर को स्टोरेज करने के लिए, जो पानी स्टोर करने के लिए इसका मड का बना हुआ एक मटका होता है, ठीक है, राउंड, बिल्कुल वो स्फेरिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है. उसको जो हमने ये स्फेरिकल फॉर्म का जो पिक्चर लिया है, जो मटका लिया है, इसको हम बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा सा पार्टिकल है. तो उसके अंदर ये इस तरीके से ये मड पिक्चर है. इसमें एक साइड में हमने देखने के लिए ऐसे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया इसके अंदर झांकने के लिए, ठीक है. ये आई है. अच्छा, और यहाँ से मतलब हम इसमें देखेंगे और कहीं से हमें एक लाइट भेजनी पड़ेगी. अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने ऐसे मोटर से कनेक्ट कर दिया कि ये बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसा सा ही हमने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया है. तो यहाँ से देखने, जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देखेगा और यहाँ से इसके अंदर लाइट डालेगी. अब अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, छोटा सा पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है. तो अब उसको देखने के लिए, ठीक है, जो फोटोन्स डाले हमने इलेक्ट्रॉन को कि ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है. तो वो जो हमने लाइट डाली है, जो रेडिएशंस हमने डाले हैं इसको देखने के लिए, वो अपने फोटोन, जो अपनी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देंगे. अब जो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो हम इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम हम प्रिसाइजली एकदम, ठीक है, एक ही टाइम पर हम ये दोनों चीजें डिटरमिन नहीं कर सकते. वी कांट डिटरमिन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन प्रिसाइजली, ठीक है, द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो नील बोर ने अपनी थ्योरी में ये कैसे बता दिया कि ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट एनर्जी शेल है और ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. ये कैसे बता दिया? इलेक्ट्रॉन को तो हम पोजीशन डिटरमिन ही नहीं कर सकते, उसे जैसे ही रेडिएशन डालते हैं वो उसकी वो एनर्जी गेन कर लेता है और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है. तो इसका भी आंसर जो है वो बोर के पास नहीं था. बोर्स थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस फैक्ट आल्सो, ठीक है. तो व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल? द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of microscopic moving particle with absolute accuracy or certainty, ठीक है. अगर हम एक को प्रिसाइजली डिटरमिन करते हैं, ठीक है, तो दूसरा जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा. तो एट ए टाइम हम दोनों को प्रिसाइजली डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है. रीजनिंग मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों हम उसको क्यों नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ if delta x is the uncertainty in the position and delta p is the uncertainty in the momentum क्या होता है? mass into velocity. तो this principle mathematically can be given as delta x into delta p is more than or equal to h over 4 pi. So delta x is the uncertainty in the position, delta p is the uncertainty in the momentum, and मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो डेल्टा वी इज द मास में तो अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती, मास तो है ही, प्रिसाइजली डिटरमिन हो ही सकता है. तो अनसर्टेनिटी किसमें है? वो वेलोसिटी में है. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन विच इज मोर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, ठीक है. तो इसमें भी सब अनसर्टेनिटी आ रहा है ना, मे भी और मे नोट भी, तो मोर देन है या इक्वल है h ओवर 4 पाई. पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम इक्वल ही कंसीडर करते हैं. क्लियर? नाउ वी विल डू वन डेरिवेशन. आप लोगों को याद होगा उसके अंदर जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर एक पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. क्लियर? mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम इसको ड्राइव करके दिखाएंगे. तो नील बोर ने क्या बोला था? ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं. डी ब्रोगली क्या कह रहा है कि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. जब वो मूविंग उसमें है तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. अब वेव कैसे ट्रेवल करती है? वेव तो ट्रफ और क्रस्ट की वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, लाइक दिस, ठीक है. तो अगर वेव
न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, जो ये सर्कुलर पाथ है इसके अंदर जो ट्रेवल कर रही है, ये वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और जो वेव है इलेक्ट्रॉन वेव, इसको हम बोलते हैं मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वेव। द वेव शुड बी इन फेज, वेव शुड बी इन फेज मतलब एक एंड और दूसरा एंड वो उसमें मर्ज कर जाएगा। और जो आउट ऑफ फेज कौन सी वेव होती है, लाइक दिस, दिस इज आउट ऑफ फेज। तो वेव के दोनों एंड अलग अलग हैं, इसमें जो वेव के दोनों एंड्स हैं वो ओवरलैप कर गए, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस अपनी से इलेक्ट्रॉन वेव से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वेव शुड बी इन फेज। अगर वेव इलेक्ट्रॉन की फेज में नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन उस वाले एनर्जी शेल में नहीं रहेगा, ठीक है, वो फिर किसी और एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसमें नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब वेव के अंदर दो ट्रफ दो क्रस्ट के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो जो सरकमफ्रेंस है इसकी, तो 2 पाई आर दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। कितने ट्रफ हैं कितने क्रस्ट हैं, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी अभी हमने किया, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच ओवर एम वी, इनको अरेंज कर दीजिए, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमने जो बोर पोस्टुलेट का एंगुलर मोमेंटम था वो हमने इसके अंदर डिराइव कर दिया। क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स एन इलेक्ट्रॉन मेक इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स, एक जो वेव है ये, दिस इज कॉल्ड एज वन वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन किस फर्स्ट एनर्जी शेल में सेकेंड एनर्जी शेल में ये कितनी वेव बनाता है, देखिए क्वेश्चन है। दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, n is equal to 1, number of waves 1, n is equal to 2, number of waves 2, n is equal to 3, number of waves 3, n is equal to 4, number of waves 4। क्लियर? तो जो उसका एनर्जी शेल का जो n की वैल्यू है उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स है। तो फर्स्ट एनर्जी शेल में केवल देयर इज ओनली वन वेव, इन द सेकेंड एनर्जी शेल देयर आर टू वेव्स, लाइक दिस। नेक्स्ट वी विल डू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अच्छा, तो अभी मैंने डिस्कस किया कि बोर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, वो दो कॉन्सेप्ट्स हमने किए, ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो अब नाउ वी नीड न्यू मॉडल, एंड दैट न्यू मॉडल इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर, जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर, दूसरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यस, द पॉइंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था। सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल वाज पुट बाय एरविन श्रोडिंगर, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट श्रोडिंगर। अभी मैं अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको श्रोडिंगर की इक्वेशन भी दूंगी कि इसने 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, वो हायर लेवल पे है। आई विल गिव यू इक्वेशन। द नेक्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल वेव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो नील बोर ने बोला, क्या बोला था, जैसे एक प्लेन सरफेस है, न्यूक्लियस उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के, उसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर उसने दी है, तो ठीक है, वेव की फॉर्म के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है 3 डायमेंशनली। तो ये एक जैसे बोर के उसमें तो एक सर्कल हो गया, और अब जो होगा वो स्फीयर फॉर्म हो जाएगा, गोला हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस उसके बीच में बैठा है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर अभी तक ऑर्बिट वर्ड था, जो सर्कुलर पाथ है उनको ऑर्बिट कहते हैं। जब ये 3 डायमेंशनल पिक्चर आ गई उसकी एटम की, तो इसके अंदर ऑर्बिट की जगह जो वर्ड यूज किया गया है वो है ऑर्बिटल। अभी ये नेक्स्ट में मैं उन्हीं पॉइंट के ऊपर आ रही हूँ। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसी से 3 डायमेंशनल पिक्चर सामने आई है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। Now this model describes the electron as a 3-dimensional wave in the electronic field of positively charged nucleus. This is Schrodinger equation delta, this is d square psi over dx square, ठीक है। This is second order differentiation equation, मैथ्स में आपने कर लिया होगा या फिर अभी आप करोगे। This is in the x direction, y direction, z direction, m is the mass of electron, h is the Planck's constant, E is the total energy of the electron and V is the potential energy of the electron। अब आपको ये वाला टर्म नया लग रहा होगा, what is this is called as psi, spelling है PSI, this is the wave function।
psi is the wave function and this is the amplitude of the wave, amplitude of the wave, and this is second order differentiation equation. तो अब जो इलेक्ट्रॉन की हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं मिलने की न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो हम तीनों डायरेक्शन में देख। साई इज द वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेव फंक्शन, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन साई स्क्वायर. साई स्क्वायर गिव्स द इंटेंसिटी of finding electron at a particular point, at a particular point. ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी है where the probability of finding the electron is maximum, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कहां पर है, that is called as an orbital. The orbital can be defined as, an orbital is three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. देखिए ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट एनर्जी शेल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ये वेव फेज में बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, ये तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो ऐसे डॉट फॉर्म में हमने इसको इंटेंसिटी को दिखाया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलने की ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इसमें हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं, जब डार्क से क्लाउड्स होते हैं तो देख के कहते हैं आज तो भैया बारिश आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर ऐसे ही उसका वाइट वेट से होते हैं तो ऐसे लगता है भैया आए ऐसे ही चले जाएंगे, तो जब वो हमें डार्क कलर के दिखाई दे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी कोई जहां पर ज्यादा डेंस सी जगह दिखाई दे रही है, जहां उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसमें ऐसे डॉट से आ जाते हैं और फिर उसका एक इमेजिनरी लाइन लेकर और फिर उसका रेडियस वगैरह डिटरमिन करते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनली is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Now we will do some numericals. Yes, this is the question. Calculate the de Broglie wavelength of the electron in second orbit of hydrogen atom. Okay, this is the standard formula for the radii of stationary state in hydrogen atom. ठीक है, Rn is equal to 0.529 into n square. N for first orbit it is n is equal to 1, for second n is equal to 2 and so on. तो फर्स्ट ये सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो R2 is equal to 0.529 into 2 square angstrom. ठीक है, नाउ हमें वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू भी हमें पता है, हमारे पास v नहीं है, ठीक है। तो जो ये r की वैल्यू है इसकी हेल्प से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, ठीक है। तो v यहां से निकालेंगे, v इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई mr, और ये वेलोसिटी जब आ जाएगी इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, या वेलोसिटी की वैल्यू इसमें ऐसे अभी पुट कर दो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, h ओवर m और वेलोसिटी आ जाएगी 2 पाई m r ओवर n h, तो h कट जाएगा, मास कट गया, ठीक है। और सेकंड के लिए है तो ये आ जाएगा 2 पाई r ओवर 2, द वैल्यू विल बी पाई r, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 22/7, और जो r की वैल्यू यहां से आएगी इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और वेवलेंथ डिटरमिन कर देंगे। Now next question is calculate the longest wavelength of helium He plus in Paschen series. He plus is hydrogen like species. We will use this Rydberg formula, 1 by lambda is equal to r, r is the Rydberg constant, z is the nuclear charge. Helium के केस में क्या nuclear charge होगा 2, Paschen series. For the Paschen series n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4, 5, 6. तो वो कह रहा है longest wavelength, ठीक है। तो E is equal to hc ओवर लैम्डा, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है वो कम से लीस्ट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो पास्चन सीरीज में जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो थर्ड से फोर्थ में हो रहा है, सबसे छोटा ट्रांजिशन क्या होगा,
जो अपने से नेक्स्ट में, इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर वाले में जा रहा है। तो n1 की वैल्यू 3 आएगी, n2 की वैल्यू 4 आएगी। तो और तो दिस फार्मूला बिकम्स 1/λ, r की वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, z हीलियम के केस में 2 आएगा 2 स्क्वायर और 1 3 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ He+ इन पास्चन सीरीज। तो सेम ही है 1/λ, इसमें रिडबर्ग की वैल्यू लिखेंगे और Z2 1/पास्चन सीरीज अभी अभी आपको बताया 3 स्क्वायर 1/n2 इसमें क्या लिखेंगे, दैट विल बी इंफिनिटी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जैसे मैंने अभी बताया आपको E इज इक्वल टू hc/λ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसमें एनर्जी हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनर्जी क्या होगा, जो अभी जो है ये शेल मैंने आपको बताया, ये n इज इक्वल टू 3 है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भाग गया, दूर चला गया, इतनी मतलब मैक्सिमम एनर्जी हम दे रहे हैं, तो वो इंफिनिटी में चला गया। ठीक है, तो बस ये वाला तो 1 इंफिनिटी 0 हो जाएगा 1/9, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यू कैन डिटरमिन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, En इज इक्वल टू -2π स्क्वायर me⁴n²⁴। हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। हमने नेगेटिव क्यों है, क्वेश्चन ये कि नेगेटिव यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है। तो जब एटम की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को वो से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज समवेयर एट इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन कहीं दूर है, इन्फिनिटी में है। तो जब वहाँ इन्फिनिटी में है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज टेकन एज 0। तो एज द इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो 0 तो वो इन्फिनिटी पे है, तो 0 से डिक्रीज होकर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना है, वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा रहा, वो कंप्लीटली जा रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटली जा रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी में जा रहा है, इन्फिनिटी से आया था, इन्फिनिटी में जा रहा है। तो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी जो इन्फिनिटी पर है, एंड माइनस E1। तो फर्स्ट एनर्जी शेल से हम निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें फर्स्ट एनर्जी शेल कंसिडर करना पड़ेगा। Now that is equal to 0 minus 1.312 into 10⁻⁶। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 1.312 into 10⁻⁶ जूल्स पर मोल। तो कोई और भी क्वेश्चन हो जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमिन ऐसे करने के लिए बोलेंगे, तो आपको इन्फिनिटी वाली वैल्यू लेनी है, और कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकेंड उसकी एनर्जी आ जाएगी। Now next question is if an electron is moving with the velocity of 600 meter per second which is accurate up to 0.005%, calculate uncertainty in position। तो लैंग्वेज देख के यही पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो हमें क्या डिटरमिन करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन हमें डिटरमिन करना है। मास, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें गिवन है, h की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो बस हमें डेल्टा v निकालना है। ये तो कह रहा है विद वेलोसिटी हमें दी हुई है, और जो एक्यूरेट है वो केवल ये वो एक्यूरेट अप टू 0.005%। तो इसमें हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू 600 इंटू 0.005/100। ठीक है, परसेंटेज है, उसको हटाने के लिए 0.005/100, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी 0.30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब जो ये फार्मूला है आपका, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और डिटरमिन डेल्टा x, ये अपने आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द लेवल whose angular momentum is this to the next lower level। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता n की वैल्यू क्या है, ठीक है, और वो कौन से लोअर लेवल पे जाएगा, 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा, वो हमें नहीं पता। तो अब ये आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू गिवन है 5.27 इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू nh/2π। h की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n।
ठीक है। तो ये जो वैल्यू सारी पुट करके आप कैलकुलेट कर लेना, n की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर वो कह रहा है लोअर लेवल क्या हो जाएगा 4। तो वे उसका फार्मूला क्या है वेवलेंथ निकालने का, रिडबर्ग फार्मूला अभी हमने किया था, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी r यस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 इक्वेशन बन गई है। नाउ कैलकुलेट वेवलेंथ, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, ठीक है। आई होप मतलब मेरा जो पढ़ाने का यही तरीका है, जो भी जिस दिन मैंने पढ़ाया मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ करवा देती हूँ, ठीक है। तो इससे जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाता है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।